the capacity to do any work is called energy. जब भी हम कोई काम करते हैं we use up the energy, like we use the energy that is stored in our muscles, and we get that energy from the food we eat. So any machine we use, that is also working on the energy. If we are using mixer grinder, that is using electrical energy. If we are using any vehicle that is running on petrol or diesel, so in this way we get energy from different fuels or food. Now talking about the different forms of energy. First type of energy is the chemical energy. It is a form of potential energy जो कि फूड, फ्यूल्स और बैटरीज में प्रेजेंट होती है. जो भी फूड हम खाते हैं दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. और जब भी हम कोई काम करते हैं दैट केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू मस्कुलर एनर्जी. मस्कुलर एनर्जी, the energy that is stored in our muscles. और ये वो एनर्जी है जो हमें काम करने के लिए पावर देती है. So it is the energy we use to do different work, for playing, for running, etc. Wind energy, energy of the moving air, that is known as wind energy. और ये wind energy है जो windmills लगाकर we use it to pump water और grind the wheat, आटा बनाने के काम आती है. And a little amount of electricity can also be produced by connecting the windmills with the turbine, जो कि जनरेटर को मूव करेंगी and electricity will be produced. Electrical energy, इलेक्ट्रिसिटी हम वेरियस फॉर्म्स में यूज़ करते हैं. जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं दे वर्क व्हेन द करंट पासेस थ्रू देम, जैसे कि कूलर, फैन, आयरन, टेलीविज़न, कंप्यूटर. सो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज़ चेंज्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. जैसे वॉशिंग मशीन में या मिक्सर ग्राइंडर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो मशीन्स को रोटेट करती है, तो ओवर देयर इट इज़ चेंज्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ovens में, माइक्रोवेव्स में, आयरन में. So electrical energy is changing into the heat energy. And in our bulbs and tubes, electrical energy is changed into the light energy. So electrical energy है जो वो different forms of energy में transform हो जाती है. Water energy, the moving water या फिर ऊंचाई से गिरता हुआ वाटर, that is having energy in it, which we used to produce hydroelectricity. Hydro means water, electricity means electricity, and hydroelectricity means electricity produced with the help of water. डैम्स में वाटर को स्टोर करके रख लिया जाता है और फिर जब वो ऊंचाई से नीचे गिरता है it runs the turbines which moves the generators and electricity is produced. और वो जो electricity produce हुई है that is known as hydroelectricity. Solar energy, the energy of the sun, that is known as solar energy. Food can be cooked in the solar cookers. Solar cookers में solar energy की help से हम अपना food cook कर सकते हैं. Same way
स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं सोलर सेल्स, इनमें जो सोलर एनर्जी है दैट इज चेंज इनटू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ बैटरीज चार्ज होती है, और फिर आफ्टर दैट वी यूज़ दैट एनर्जी फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे कि हमारे विलेजेस में स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, दोज आर रनिंग ऑन द सोलर एनर्जी। साउंड एनर्जी, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड वाइब्रेशंस। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में साउंड ट्रेवल करता है, इसकी जो वाइब्रेशंस है दे आल्सो प्रोड्यूस द एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, इनके जो एटम्स हैं those are possessing high amount of energy which is known as atomic energy. जब ये रिएक्शन करते हैं they produce a lot of energy which can give us a large amount of electrical energy. ये जो atom bombs बनते हैं so those are also made by making use of these atomic energy. थर्मल एनर्जी और वी कैन से हीट एनर्जी, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं जब ये मूव करते हैं दे क्रिएट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ नोन एज हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी। और व्हेन वी बर्न द फ्यूल्स द एनर्जी प्रोड्यूस्ड दैट इज नोन एज हीट एनर्जी। और थर्मल पावर स्टेशंस में हम कोयले को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सेम वे इन द स्टीम इंजन्स coal is burned to produce the steam which in turn pulls the train. Now talking about the different types of energy, sources of energy. There are two types of sources of energy. One are the renewable sources. Sources जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिलते हैं in the nature and they are inexhaustible, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होंगे. So those sources of energy are known as renewable sources of energy. जैसे कि wind energy. So we can use the windmills, the area which is having large amount of wind blowing. जहाँ पे हवा तेज़ गति से चलती है वहाँ पे हम windmills लगा के wind energy को use कर सकते हैं for different purposes. Then solar energy, as I have told you, is the energy from the sun. अगर हम large area में solar cell panels को लगा दें, so we can convert the solar energy into different types of energy. Hydroelectric energy. So electricity जहाँ से falling water की energy को लेके electricity बनाई जाती है. So those stations are known as hydroelectric power stations, और वो जो electricity produce हुई है that is known as hydroelectricity, because इससे जो water है वो ख़त्म नहीं हो रहा. So only the movement of the water is producing the energy. So this is renewable source of energy. Same way बायोगैस या जिसे हम बोलते हैं गोबर गैस, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ बायो एनर्जी जो ऑर्गेनिक वेस्ट से बनती है आफ्टर इट्स डिकम्पोजिशन. सो बायोगैस है जो दैट इज़ स्मोकलेस फ्यूल एंड इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन. सो ये जो सारे सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैं दीज आर ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. So these sources are present in large amount in the nature, and now talking about the non-renewable sources of energy. Non-renewable sources of energy, these are present in fixed quantities. इनकी जो quantity है nature में that is fixed, and once used they can never be reproduced. एक बार
यूज़ कर लिए दोबारा नहीं बनेगा, और अगर बनेगा भी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, thousands of years. So it takes a long period of time for reproduce. Petroleum, coal and natural gases, these are non-renewable resources. पेट्रोलियम हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। तो इसके बिना इसमें से और भी कई प्रोडक्ट्स आते हैं। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड as a source of energy and heat. So it is used to create steam, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर मशीन्स को चलाते हैं। Natural gas is used as a fuel for cooking and heating. Nowadays it is also used in the vehicles. So इसीलिए because इनको बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, we should not waste these sources of energy. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्सेस की समझदारी से यूज़ करना, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है इन द यूनिवर्स दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो यूनिवर्स की जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ना ही हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही हम इसे ख़राब कर सकते हैं, इसलिए द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कांस्टेंट। बट जो एनर्जी है दैट इज़ चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिक्सर ग्राइंडर्स में इट इज़ चेंजिंग इनटू मैकेनिकल एनर्जी। When you rub your hands, तो आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है वो रबिंग के साथ इट चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। सो एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे पोटेंशियल एनर्जी, किसी चीज़ की जो एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट या स्टेट, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी, बेटा एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, उसकी स्पीड की वजह से, उसके चलने की वजह से। सो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो इन दिस वे द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स द सेम, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। थैंक यू।